زرتاشا اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی اپنی بیٹی کو پریوں کی کہانی سنا رہی تھی اور ساتھ ہی یکدم اس کی آنکھوں کے پردے پر اس ظالم کا بے چین سا چہرہ ابھرتا ہوا محسوس ہوا تو بمشکل اپنی آنکھوں کی نمی کو ان کی حدود تک وہ روک پائی۔ کہانی مکمل کرتے اس نے جھک کر اپنی بیٹی کا چہرہ تکا تو وہ سو رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا اور اس ظالم شخص کی ظلمت سوچتے کب اس کی آنکھوں سے نکلتا گرم سیال اس کا تکیہ بھگونے لگا، اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ یکدم بڑی زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ یکدم اٹھی کہ کہیں منت جاگ نہ جائے، اگر وہ جاگ جاتی تو ساری رات وہ جاگ کر ہی گزارتی۔ اس نے دوپٹہ اچھے سے کندھوں پر پھیلا کر دروازہ کھولا تو سامنے فلک روتا بھیگتا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے یکدم پریشانی سے پوچھا۔ ہمارا شوہر مر گیا ہے، وہ چلا کر کہتی کمرے کا دروازہ مکمل کھولتی کمرے میں گھسی تھی۔ ہیں؟ کیا ہوا جابر کو؟ وہ یکدم گھبرا کر فلک کے کمرے کی سمت بھاگنے کو تھی کہ یکدم فلک نے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں، اور ویسے بھی اس جیسی کمینی روحوں کو اتنی آسانی سے موت نہیں آتی، وہ چٹک کر کہتی۔ زرتاشا کے حواس بحال کر گئی۔ پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ زرتاشا نے رونے کی وجہ جاننا چاہی۔ بہت کمینہ ہے یہ شخص، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ وہ بیڈ پر پیر چڑھا کر بیٹھتی سی سکتی بولی۔ یہ تو تمہیں اس سے شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ زرتاشا کمرے کا دروازہ بند کرتی بیڈ کے سرہانے کے پاس آ بیٹھی۔ وہ دھیرے سے منت پر کمبل درست کرتی اس کے ماتھے پر لب رکھتے اٹھی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ تب نہیں سوچا پر اب تو سوچ سکتی ہوں نا، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی منہ بنا کر گویا ہوئی۔ شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے فلک، اس نے حیرت سے کہا۔ اس کی شادی ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تھے اور وہ توڑنے کی باتیں کر رہی تھی۔ تو کیا کروں؟ بہت بدتمیز کمینہ آوارہ گھٹیا انسان ہے یہ شخص۔ تمہیں کیا بتا رہی ہوں، تمہیں تو اندازہ ہوگا ہی نا۔ وہ منہ بناتے گویا ہوئی۔ کیا کر دیا جابر نے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے تانے مارے، میرے بال کھینچے اور مجھے دھکا دیا، وہ بھی پورے 2 بار۔ وہ سسکتی ہوئی گویا ہوئی۔ بس اتنی سی بات پر وہ کمینہ ہو گیا؟ وہ اسے دیکھتے افسوس سے بولی۔ ہاں تو اور کیا کریں، میری جان لے گا کیا؟ فلک نے خفگی سے طنز بھرا استفسار کیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں فلک، یہ تمہارا اور جابر کا معاملہ ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ تم کچھ نہ کرو، بس مجھے اپنے کمرے میں رہنے کی جگہ دے دو، وہ بڑی آس سے بولی۔ پر کیوں؟ اسے پھر حیرت نے آ گھیرا۔ بس مجھے اس کے منہ نہیں لگنا، وہ غصے سے کہتی گال پھلائے بیٹھ گئی۔ زرتاشا کو اس کے پھولے گال دیکھ کر ہنسی بھی آئی، پر بہرحال سر اس بات میں ہلاتی اس کمرے میں رہنے کی اجازت دے ڈالی۔ اس نے اس کی اجازت ملتے ہی بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر حملہ کیا اور کمبل تان کر لیٹ گئی۔ زرتاشا بھی خاموشی سے خود پر کمبل درست کرتی لیٹ گئی تھی۔ سائڈ لیمپ کی لائٹ آف کرتی وہ آنکھیں موند گئی اور دوسری طرف فلک کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ زرتاشا کی بھی آنکھیں تکیہ بھگونے لگی تھی۔ دونوں اندھیرے میں کروٹ کے بل لیٹی ایک ہی شخص کو رو رہی تھی اور شاید اپنے نصیبوں کو بھی۔ سب کا ناشتہ بنا کر وہ کچن سے نکلی تو سامنے سے آتے جہانداد کو دیکھ کر منہ بنا کر وہ سائڈ سے نکل گئی۔ جہانداد کچن میں گھسا، ناشتہ بنانے کی غرض سے ہی تھا، پر ناشتہ بنا دیکھ کر اس کا دل شاد ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ ٹیبل پر لگایا۔ جویریہ اور حوریہ کے منہ سے بے ساختہ او نکلا۔ واہ پاپا، آج تو آپ نے ہمارا رونا پیٹنا ڈالنے سے پہلے ہی ناشتہ بنا لیا، امیزنگ۔ جویریہ خوشی سے چہکی۔ میں نے نہیں بنایا بیٹے، صبور نے بنایا ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اپنے کپ میں چائے اونڈیلنے لگا۔ اوہ اچھا، صحیح۔ جویریہ نے بھی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ وہ ناشتہ نہیں کر رہی؟ اب کہ جویریہ اپنے باپ سے مستصفر ہوئی، اب کہ حوریہ اپنے باپ سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، وہ سنجیدگی سے چائے کی چسکی بھرتے بولا۔ صحیح، حوریہ جاؤ انہیں ناشتے کے لیے بلا لاؤ۔ حوریہ نے پراٹھا اپنی پلیٹ میں رکھتے جویریہ کو کہا۔ خود چلی جاؤ نا، میں تھک گئی ہوں، وہ چڑی تھی۔ جویریہ اٹھو اور شرافت سے انہیں بلا کر لاؤ، حوریہ نے چبا کر کہا۔ ڈیڈ دیکھ لیں اسے، وہ غصے سے کہتی پیر پٹکتی اٹھی۔ روز دیکھتا ہوں، جہانداد نے ہنستے ہوئے کہا تو حوریہ بھی ہنس دی، البتہ جویریہ پیر پٹکتی ہوئی منظر سے غائب ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ اور صبور آئیں اور ناشتہ کرنے بیٹھی۔ صبور نے خاموشی سے ناشتہ کیا، وہ لوگ بھی خاموشی سے ناشتہ کر کے اٹھے اور کل کی طرح پہلے اس کی بیٹیاں نکلیں اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بھی چلا گیا۔ اس نے ٹیبل پر سے گندے برتن اٹھائے، کچن میں لائی اور سارے برتن دھو کر اپنے ٹھکانے لگائے۔ کچن صاف کر کے وہ باہر نکلی، ٹی وی لاؤنج کی ڈسٹنگ کی اچھے سے۔ ٹی وی لاؤنج کو صاف کر کے وہ اپنے بیڈ روم میں گئی، بیڈ روم سمیٹا۔ اس کا رخ اب جویریہ اور حوریہ کے کمرے کی طرف تھا۔
उन के कमरे में कदम रखते ही उसका सर चकरा गया। कमरे में जगह जगह गंदे कपड़े पड़े थे, अलमारी के तमाम पट खुले थे और कपड़े सैलाब की मानिंद उबल उबल कर बाहर को गिर रहे थे। खाने के गंदे बर्तन जगह जगह पड़े थे। बेडशीट बेड की बजाय नीचे फर्श पर पड़ी थी। ड्रेसिंग पर हर चीज़ गिरी पड़ी थी। वो सर अफसोस में हिलाती कमरे में घुसी और जो उनके कमरे को समेटना शुरू किया तो सुबह के 9 बजे से दोपहर के 12 बज गए। वो थकन से चूर अपने वजूद को लिए नहाने गई। नहाकर निकली तो भूख का एहसास शिद्दत से हुआ। अपने बाल पुष्ट पर खुले छोड़ती वो किचन में आई, नूडल्स का पैकेट निकाला, नूडल्स बनाए। खाकर वो जोहर की नमाज पढ़कर सोने को कमरे में चल दी। अभी उसकी आंख भी न लगी थी कि छम से उसकी आंखों पे हारिस का चेहरा उतरा। उसकी आंखें भीगने लगी। हारिस की संगत में बिताए हसीन लम्हों में से एक लम्हा उस याददाश्त के पर्दे पर छाया। हारिस, मैं नहीं बना रही खाना, मेरा बिल्कुल मूड नहीं। उसके बराबर बैठते मुंह बिसोरते बोली, निकम्मी औरत हो पूरी। उसने मसरूफ अंदाज में उसे छेड़ा। औरत ना बोला करे, वो बुरा मना गई। मैंने निकम्मी भी कहा है, वो अजल का मसरूफ अंदाज। बात ना करना अब मुझसे। वो पल में रूठी थी। तुमसे बिना बात किए रह सकता हूँ, वो सामने बिखरे कागजात समेटते बोला था। मुझे क्या पता, जवाब नरोटेपन से ही दिया गया। तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है खबर हाले दिल की। वो शोक नजरों से तकते उसके गाल दहका गया। बस बातें करवा ले आपसे कोई। वो उसके कंधे पर चपत रसीद करते उठी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हारिस की मोहब्बत वो भुलाई नहीं भूल पा रही थी। वो अपने जिन्हें अपना सब कुछ मानती थी, वो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उससे छीन चुके थे। उसकी शादी जहां दाद से करवाकर हारिस को सोचने का हक भी उससे छीन चुके थे। वो हारिस से बेवफाई कर चुकी थी। ये दुख उसे एक पल सुकून नहीं दे रहा था। दिल था कि दर्द से फटने के करीब था। आंखों में मिर्चें सी घुलने लगी। वो बहुत छोटी थी जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। उसे धुंधला सा अपनी माँ की मैयत का वक्त याद पड़ता था, जब उसकी माँ का मुर्दा वजूद पड़ा था। लोग बैन कर रहे थे, रो रहे थे और वो छत की मुंडेर पर बैठकर केले खा रही थी। वो लोग उसकी माँ की मैयत पर आए थे। वो सब उसे तासुफ और दुख से देख रहे थे। वो हमेशा लोगों की मैयतों पर लोगों को रोते पीटते देखकर महज इतना ही सोच पाती थी कि रोना कैसे आ जाता है। मुझे तो रोना नहीं आता। पर वो उस रोने के भेद को भी जान गई थी। जब आपका कोई बेहद दिल अजीज मनो मट्टी तले दफन हो जाता है, तब आप रोना नहीं चाहते, आप रो पड़ते हैं। आंखें खुश्क हो जाती हैं, बैन बंद हो जाते हैं, पर दिल एक ऐसे दर्द से भरा रहता है जैसे जैसे हकीकत में फटने को हो। हाँ, उसने सुना था अपनी जिंदगी में कई बार लोगों से, मेरा दिल फट जाएगा इस गम से। पर वो हमेशा यही सोचती थी कि ऐसे ही अगर दिल फटने लगे तो हर दूसरे घर में दिल ही दिल फट रहे होते। मगर जब उसे दिल के फट जाने जैसे दर्द से, दुख से शनासाई मिली तो उस कमली को मालूम हुआ कि शायद दिल फट जाए तो इतना दर्द ना होता। पर वो पल पल की अजियत इंसान को मार देती है। वो जान गई थी अपने किसी जान से अजीज प्यारे को सफ़ेद कफन में लिपटा देख लेना कैसा बेबसी से दो चार कर देने वाला अमल होता है। वो लम्हे इंतहाई अजियतनाक होते हैं जिन लम्हों में आपसे आपके प्यारे बिछड़ जाते हैं। रोते रोते वो गहरी नींद की वादियों में गुम हो गई। सर, हमें छापा मार देना चाहिए, जवेरिया खासा प्रोफेशनल अंदाज में जहादात को मुखातिब कर गई। नो सर, मेरा ख्याल है हमें वेट करना चाहिए, अब के हुरिया खासा प्रोफेशनल अंदाज में बोली। नो सर, हमें रिसर्च करनी चाहिए अभी। अली भी खासी संजीदगी से अपनी बात कहता जहादात को देखने लगा। वाह, मेरी टीम के सीनियर मेंबरान में ही इस कदर इत्तफाक है कि कोई हमारा मिशन फेल कर ही नहीं सकता। जहादात ने बड़े ही ठंडे लहजे में तंज किया। सर, हमारे बीच अच्छा खासा इत्तफाक है। तीनों यकजुबान हुए थे। मुझे नहीं लगता, अगर आप तीनों के माबैन इत्तफाक होता तो आप लोग एक बेहतरीन दलील के साथ यहाँ प्रोफेशनल अंदाज में मेरे टेबल पर रखते। समझ गए ना आप लोग? वो संजीदगी से कहता उन तीनों को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर गया। जी सर, हम समझ गए। तीनों मुंह लटकाए बैठे थे। ओके, आधा घंटा है आप तीनों के पास। बेहतरीन फैसला मेरे सामने पेश कर दीजिएगा आधे घंटे बाद। वो संजीदगी से कहता उठा था। टेबल पर पड़ी अपनी कार की चाबियां उठाता उन्हें हिदायत देता ऑफिस से निकल गया और वो तीनों महज एक दूसरे की शक्ल देख कर रह गए। अब क्या फैसला है तुम लोगों का? जवेरिया ने संजीदगी से दोनों को देखा।
मेरे ख्याल से हमें बैठकर अब तक हम जितनी भी प्लानिंग कर चुके हैं उस पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए। हुरिया संजीदगी से कहती उठी, चलो देख लेते हैं, हमारे एक नज़र डाल लेने में कौन सी तब्दीलियां आ जाएंगी उसमें। अली ने मुस्कुराते हुए मीठा सा तंज किया, तुम्हारे नज़र डाल लेने से आए या ना आए, पर हमारे नज़र डाल लेने से ज़रूर आ जाएगी। वो भी तंज का जवाब तंज से देती मुंह बना गई। प्लीज़ अब तुम दोनों लड़ो तो मत। जवेरिया ने दोनों को टहुका दिया। कौन लड़ रहा है? मैं, और इससे लड़ूंगी। हुरिया ने अली को घूरते चिढ़ कर कहा। अली और जवेरिया एक दूसरे को देखकर बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाए थे। अब जाबिर की आंख खुली तो उसने खुद को कमरे में तन्हा पाया। फलक रूम में मौजूद नहीं थी। उसे रात के तमाम वाक़यात याद आए तो उसने परेशानी से अपनी कनपटी को मसला। शायद वो सर दर्द के बाइस बहुत ज़्यादा बोल गया था। ऐसी बातें बोल गया था जिनसे शायद नहीं, यकीनन उसका दिल बहुत दुखा था। उसे याद आया वो कल रात जरताशा को भी बिला फजूल की सुना गया था। वो भारी होते सर के साथ उठता वॉशरूम में बंद हुआ था। कुछ देर बाद वो नहाया धोया निकला तो उसकी नज़र अलमारी का एक पट वाह किए खड़ी फलक पर गई, जो न जाने क्या ढूंढ रही थी। वो उसकी नाराज़गी याद किए बिना, आवाज़ पैदा किए बिना उसकी पुश्त पर जा खड़ा हुआ और उसको कमर से थामता खुद से लगा गया। छोड़े मुझे, उसने झुंझलाहट से कहा और अपने आप को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवाने में आखिर कामयाब हो गई। उसके छोड़ते ही यकदम कमरे का दरवाज़ा बजा और एकदम से उनका फसूं टूटा। कौन? उसने कदरे ऊंची आवाज में पूछा और जाबिर खान शीशे के सामने खड़ा अब अपनी बॉडी पर स्प्रे छिड़क रहा था। बीबी मैं हूँ, वो जरताशा बीबी कह रही थी कि आप आ जाएं, उन्होंने नाश्ता लगा दिया है। नूरा, जो कि उनकी मुलाजमा थी, उसे पैगाम देती दरवाजे से लौट चुकी थी। फलक उससे नज़र चुराती अपनी मतलूबा चीज़ जल्दी से अलमारी से उठाकर कमरे से निकलने को थी कि यकदम जाबिर ने उसकी कलाई को थामा और उसके चेहरे को थामता नरमी से उसके गालों को छूता मोहब्बत से तकते हुए बोला, कल के लिए माफ़ कर दो। सर में दर्द था बहुत। वो उसके माथे पर लब रखता पीछे हटा। आपके अल्फाज माफ़ी के काबिल नहीं थे और अभी जो आपने हरकत की उसके बाद तो माफ़ी की उम्मीद ही दिल से निकाल दें। वो सुर्ख निगाहों से उसे तकती हुई गोया हुई, क्या हरकत की है? वो यकदम भड़का था। ये जो भी आपने अभी किया, वो भी उसी के अंदाज में कहती उसका सेरों खून जला गई थी। हाँ तो कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए मैं तुमसे माफ़िया मांगता फिरूं। बीवी हो तुम मेरी। वो ब्रश ड्रेसिंग पर पटकता अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा। आप अगर मांग भी लेना मैं तब भी माफ़ नहीं करने वाली। वो तनफ्फुर से कहती कमरे का दरवाज़ा धाड़ से बंद करते हुए निकल गई। उसके इस अंदाज पर जाबिर खान का गुस्से से बुरा हाल हो गया था। उसने तैश के आलम में ड्रेसिंग पर पड़े सामान को पल भर में ज़मीं बोस किया और ख़ुद भी उसके पीछे ही निकल गया। सही, शुक्रिया आपने अब तक जितनी भी मेरी मदद की। आप दोनों का शुक्रिया। वो उनसे मुसाफिहा करता कॉफ़ी शॉप से निकल गया था। या अल्लाह, अब तक मेरे मालिक जितनी तूने मेरी मदद की इन तमाम मामलात में, मेरी मज़ीद मदद फरमा। मुझे मेरे नेक इरादों में कामयाबी अता फरमा। वो अल्लाह से दिल ही दिल में मुखातिब था। जब सामने से आते किसी वजूद से टकराया तो चौंकते हुए फ़ौरन उसके लबों से माजरत के अल्फाज अदा हुए। सॉरी, प्लीज़, मेरा ध्यान नहीं था इस तरफ। उसने माजरत करते हुए टकराने वाले का सामान जो नीचे गिरा था वो झुककर उठाया, पर नज़र ऊपर उठते ही उसे खुशगवार हैरत हुई। बख्तावर, तुम कैसी हो? वो पुरजोश हुआ। जहादाद, ओह तुम कितने चेंज हो गए हो। ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? उसके चेहरे पर पहले हैरत और फिर ढेरों ढेर खुशी के रंग बिखरे। जी बिल्कुल जहादाद ही हूँ मैं। तुम पाकिस्तान कब आई? वो भी खुशी से इस्तफसार करने लगा। 1 हफ्ता पहले ही आई हूँ जहादाद, उसने हंसते हुए पुरजोश अंदाज में बताया। रियली? 1 हफ्ता पहले आई हो और मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा तुमने? वो खफा हुआ। बस यार मसरूफ़ थी, वो नरमी से बोली। ओके, पर अब नो बहाना, मेरे साथ चलोगी मेरे घर अभी और इसी वक्त, ठीक है? वैसे तुमने स्टे कहाँ किया है? उसने फिर से पूछा। नहीं, अभी तो नहीं जाऊंगी। हाँ, पर बाद में ज़रूर आऊँगी इंशाअल्लाह। और स्टे तो मैंने होटल में ही किया है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मटका कर बोली। बख्तावर, तुम पागल हो? होटल में स्टे किया तुमने? मेरा घर होते हुए भी तुम होटल में स्टे कर रही हो? बहुत गलत बात है ये। मुझे कुछ नहीं पता। तुम अभी इसी वक्त होटल से चेकआउट करोगी और मेरे साथ मेरे घर चलोगी, बस। वो उसे डपटता अपना हतमी फैसला सुना गया था।
फिर बख्तावर ने बड़ी ना की, पर उसकी ना को हाँ में ही बदल कर जहांदाद ने सांस भरी थी। बहुत जिद्दी हो तुम। वो उसके साथ उसकी कार में बैठती उसे घूरते हुए शोखी से बोली। तुम्हें आज पता चला? वो धीमे से हंसा था। नहीं, बचपन से खबर है तुम्हारे जिद्दीपन की। वो उसे नरमी से तकते कहती अपना रुख खिड़की से बाहर की तरफ कर गई। जब खबर है तो फिर आज क्यों बावर करा रही हो मुझे? जहांदाद दांत निकालते हुए हंसा था। मुत्तफिक हूँ। वो भी हंसी। वो नीचे आया तो आज वो दोनों साथ बैठी नाश्ता भी कर रही थी और बातें भी साथ साथ। कभी जरताशा मन्नत के मुंह में निवाला डालती तो कभी फलक। जाबिर को देखते ही दोनों ने बेजारियत से निगाहें उस पर से हटाई थी और वो महज उन चुड़ैलों की अदाएं देखता रह गया था। उसने एक आईब्रो उठाकर उन्हें देखा जो अपने इकलौते शोहर को छोड़कर अपनी ही बातों में गर्क थी। खैर, उसे हैरत नहीं हुई उनकी दोस्ती देखकर, क्योंकि वो दोनों को जानता था। उसे पहले ही अंदाज़ा था कि कुछ ही वक्त में दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे। पर अब जाबिर खान से अपना इग्नोर किया जाना बिल्कुल बर्दाश्त ना हुआ और वो सलाम करता अपनी सरबराही चेयर खिसका कर आ बैठा। सलाम का जवाब मन्नत के साथ साथ उन दोनों ने दिया। मेरा नाश्ता कहाँ है? वो टेबल पर पड़े नाश्ते पर नज़र डालता बोला, क्योंकि उसे इतना तो अंदाज़ा था कि ये मोहतरमाएँ उसे ऐसे लिफ्ट नहीं करवाने वाली। सामने पड़ा है, आंखें ख़राब हो गई हैं क्या? फलक चिढ़कर बोली, पर जरताशा खामोश रही और उसे उसकी खामोशी से बेचैनी होने लगी। ताशा, हुरिया और जवेरिया से बात कर ली तुमने? उसने उसके हसीन मुखड़े को तकते हुए पूछा। नहीं। उसने उसे देखे बिना यकलफ्ज़ी जवाब दिया। क्यों नहीं की? अंदाज वाज़े तौर पर बात बढ़ाने वाला था। मैं आपके जवाब दे नहीं हूँ, उसने तनफ़ुर से कहा। मेरी जवाब दे नहीं हो तो फिर किसकी जवाब दे हो? उसने अपने तैश को दबाते हुए हाथों की मुट्ठियां भींची। औरों का तो पता नहीं, मगर आपकी जवाब दे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो चिढ़कर कहती नाश्ता छोड़कर उठ गई थी और मन्नत भी अपने बाप को हैरत से देखती माँ के पीछे भागी थी। नाश्ता तो करने देते उसे, तुम्हारी वजह से रात का खाना भी नहीं खाया था उसने। फलक गुस्से से गरजी। तुम तो चुप ही बैठी रहो चमची। वो उसे घूर कर गोया हुआ। मैं नहीं हूँ चमची, चमचे होगे तुम। वो टेबल पर हाथ मारती हुर्रा कर बोली थी। फलक, चुप कर जाओ वरना नहीं पिट जाओगी तुम मुझसे वरना। वो उसको खश्मी निगाहों से घूरता वार्न कर गया। क्यों चुप कर जाऊं? नहीं करूंगी चुप। डरती है मेरी जूती तुमसे। वो खूनख्वार हुई। अगर आप देवियों की इजाज़त हो तो नाश्ता कर लूं? रात को भी तुम लोगों के तमाशों में खाना नहीं खा सका था। वो गरजा। जो करना है करो, भाड़ में जाओ, पर मेरे मुंह ना लगना जाबिर खान, और ना ही ताशा के। नहीं तो कल न्यूज़ चैनल्स पर ये हेडलाइन नशर होगी कि मशहूर बिजनेसमैन जाबिर खानजादा को उसकी दो हसीनो जमील बीवियों ने इस बुरे तरीके से डंडों से मारा कि वो जान से हाथ धो बैठा। वो टेबल पर हाथ मारती उसे वार्न करती ताशा के रूम की तरफ चली गई और वो महज झुरझुरी लेकर रह गया। आई बड़ी चुड़ैले ना हो तो। वो सर झटकता बुड़बुड़ाता हाथ बढ़ाकर अपनी प्लेट में खुद ही नाश्ता सर्व करने लगा। उसे वो वक्त याद आया जब उसकी माँ जिंदा थी तो कैसे उसके नाज उठाती थी, और एक तरफ ये बलाएं थी। असर की अजान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो कसलमंदी से आंखें खोलती वो उठी थी। रोते रोते सोने की बदौलत उसका सर शदीद दर्द कर रहा था। बाहर से उसे शोर की आवाज़ें आ रही थीं। वो दुपट्टा सलीके से ओढ़ती कमरे से निकलकर लाउंज में आई तो किचन काउंटर पर कंधे तकाते भूरे बालों वाली लड़की बैठी थी। काले रंग का टॉप उसके साथ वाइट पैंट पहने वो मॉडर्न सी लड़की उसे हैरत में डाल गई थी। उसे लगा शायद जवेरिया और हुरिया की कोई सहेली हो, पर किचन से आती जहां दाद की आवाज़ लाशऊरी तौर पर उसके कदम किचन की सिमत बढ़ा गई। वो किचन की दहलीज पर खड़ी किचन में होती कार्रवाई को बगौर तकने लगी। जहां दाद एप्रन पहने महारत से शिमला मिर्च को टुकड़ों में काट रहा था और वो लड़की काउंटर पर बैठी पैर झुलाते न जाने कौन से किस्से सुनाने में मसरूफ थी। जहां दाद के होंठों पर खेलती मुस्कुराहट उसे अजीब सी इनसिक्योरिटी में मुब्तला कर गई। वो अपने अंदर के अनजाने इश्तियाल को दबाती किचन में घुसी थी। उसे देखकर वो लड़की कुछ उलझी। जहां दाद के हाथ रुके थे, मुस्कुराहट सिमट कर वापस लबों पर विराजमान हुई। वो खामोशी से फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर काउंटर पर पड़े ग्लास स्टैंड पर पड़े ग्लास में से एक ग्लास उठाती किचन से बाहर निकलने को थी जब जहां दाद के अल्फाज ने उसके कदम जंजीर किए। बख्तावर, ये मेरी वाइफ है सबूर। वो शाइस्तगी से उसका तारुफ करवा रहा था। तुम्हारी वाइफ? तुमने कब शादी की, और वो भी दूसरी शादी? बख्तावर को हैरत हुई। बस अभी कुछ दिन पहले ही की है मैंने दूसरी शादी, वो संजीदगी से कहता उसे गहरे सदमे के कुएं में उतार गया। क्या? तो जाना कहाँ है?
اس کی آواز سے اس کی حیرت کا پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ صبور جو اس منظر میں خود کو مسفٹ محسوس کر رہی تھی، خاموشی سے کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی، پر کچن میں ہوتی باتوں کی آوازیں اس کی سماعت سے بآسانی ٹکرا رہی تھیں۔ جانا، وہ تو ہمیں کب کا چھوڑ کر جا چکی، وہ مدھم سے لہجے میں بولا۔ کہاں جا چکی؟ وہ جیسے الجھنوں کا شکار ہوئی تھی۔ خالق حقیقی سے جا ملی ہے وہ، اس بے درد جہاں سے بہت دور۔ وہ نرمی سے اسے بتاتا اپنے کام میں مگن ہوا تھا۔ تم نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی۔ تم سے رابطہ ہی نہ تھا تو کیسے انفارم کرتا؟ تم نے تو پاکستان سے جاتے ہی تعلق کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ اس نے جیسے اسے کچھ باور کروایا۔ میری FB پر میسیج کر دیتے، میں دیکھ لیتی۔ اس نے شکوہ کیا۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا۔ اس نے اسے ٹالنا چاہا۔ جویریہ اور حوریہ کیسی ہیں؟ وہ متفکر ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہیں، میری بہادر بیٹیاں ہیں، کبھی نہ ہمت ہارنے والی، دن کی نئی روشنی کے سنگ نئی امیدیں، نئے خواب بننے والی۔ وہ سب ہار سکتی ہیں پر کبھی ہمت نہیں ہار سکتی۔ اس کے لہجے میں اپنی بیٹیوں کے لیے دنیا جہان کی محبت سمائی ہوئی تھی۔ اوہ، اس وقت کہاں ہیں؟ اسکول گئی ہیں کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے دونوں کا پوچھا۔ اسکول؟ پاگل ہو، ان کی عمر اب اسکول جانے کی تھوڑی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ خجل سی ہوئی۔ کیا اتنی بڑی ہو گئی ہیں دونوں؟ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں باہر بیٹھے وجود کو بالکل فراموش کر گئے تھے۔ اکیلی بیٹھی صبور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھے۔ نہ جانے کیوں اسے دکھ ہو رہا تھا۔ جہاں کا اس سے زیادہ کسی غیر عورت کو ویلیو دینا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ آخر تھا ہی کیا اس 2 دن کے نکاح میں؟ پر دکھ پھر بھی ہو رہا تھا۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے ذہن سے حارث محو ہو چکا تھا۔ اس کے حواسوں پر محض اس کا شوہر چھایا ہوا تھا، صرف اس کا شوہر جہاں. وہ غصے سے اٹھی، کچن میں تن فن کرتی داخل ہوئی، گلاس پٹک کر سلیپ پر رکھا تو جہاں نے سر موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے گھورتی بختاور کو نفرت سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ جہاں اس کی اس حرکت پر حیران اور پریشان سا کھڑا تھا، وہیں بختاور کے لبوں سے برآمد ہونے والے الفاظ اسے برے لگے۔ او مائی گاڈ، کتنا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں، بہت ہی بدتمیز ہے۔ آخر اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات کا ہے؟ کوئی اتنی بھی حسین تو نہیں ہے یہ، وہ تنفر سے کہتی جہاں کو زہر لگی تھی۔ پہلی بار جہاں کو اپنی دوست بختاور زہر لگی۔ وہ اس کے مہمان ہونے کا لحاظ کرتا خاموشی سے اپنے کام میں جتا رہا اور بختاور ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتی کوئی اور ہی پلاننگ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔